Hello. Hello. Good evening, everyone. Can everyone please have their seat? It's a request. We'll be starting this session in about a minute. Hello, everyone. Very pleasant good evening to one and all. Thank you for being with us today for another Tailwind Investor Meet 2022. I extend you a warm welcome. In October 22, we celebrated 4 years of Tailwind. We have been through quite a journey in these past 4 years. We were evaluating our progress over the years, and I would like to share some figures with everyone. Tailwind is currently managing aggregate assets of 475 crores across various products. We are thankful to all of our clients for putting their trust in us. Since the beginning, deep research and excellent service has been our motto and guiding force. We have been featured discussing the same in over 100 articles across leading financial publications like Economic Times, Times of India, and Mint, to name a few. We recently received a small validation by Navbharat when they awarded us with Navbharat Platinum Award for New Age Wealth Management Company. There have been some key people who have been with us since the very beginning, and on behalf of Tailwind, I would like to sincerely thank and acknowledge them. Bachu Bhai, Kiran Bhai, Mr. D.D. Sharma, Mr. Sandeep Agarwal, Dr. Vipul Patel, and Mr. Deepak Mangla, to name a few. To be honest, all this would have been just a dream if not for your immense support. We are here today for an insightful discussion about investing. And without taking any further of your time, I call Vivek Goyal, our Joint Managing Director, bringing with him a rich experience of managing ultra HNI portfolios of over $1 billion and a strong technical finance background with MBA from IIM, CA, FRM, and CFA charter holder. He will elaborate on what it is we do here at Tailwind. Now, over to you, Vivek. Hello. Thank you for the kind introduction, Rishabh. As we look back over the year, we recognize that as an investor, it has indeed been a volatile one, marked by high inflation causing negative real returns in fixed income, while in equity markets, as we've all been tracking, it continued to remain range bound. Basically, this was one of those periods where investors were told to manage their patience and discipline. या फिर on a lighter note, जब fund managers performance के बदले वॉरेन बुफे या राकेश झुनझुनवाला के कोट्स शेयर कर रहे थे, या हमारे केस में रॉबर्ट आर्नौ के. It is during such periods that the stability of portfolio is really tested, and the fortunes of managers who have been soaring high in bull runs often turn, meaning as investors, we need to be extra watchful about our portfolios. We at Tailwind firmly believe that building portfolios which outperform in the long term requires efforts to build portfolios in a way that they protect downside during such volatile periods. And doing this requires continuous monitoring and discussions, which may either lead to some actions in terms of exits or switches, or simply reassuring to continue with what you're holding. And mind you, both are equally important. Whether we decide to sell or hold, our aim is that our client should understand and be comfortable with our decisions. With this backdrop, we did some homework about how our client portfolios have performed over this period to try and get a better picture of whether our thesis is working out. We are happy to share that even when markets were delivering negative returns, 100% of our client portfolios which have been invested over a year were positive. Meaning, despite market returns being negative, we managed to build portfolios which did not see the same downside and build a strong foundation in the overall long-term relationship. Like we always maintain, equity returns need time to deliver, and clearly for our long-term investors, that has been the case, with an average return of over 15% year-on-year delivered.
Here are some of the highlights of our success stories across products. Mutual funds, which is the core to our client portfolio. Based on our research process and agility, we have regularly been able to pick strong performers across periods. And as they say, picking winners is important, but it is key to know when to stop or exit them. And having been able to achieve that has been one of the key reasons for our performance. PMS has been a more focused offering for us. That's why we've been even more conservative, building in strict filters, whether on track record, process, team experience, etc., while picking some of these strategies. All these strategies have been positioned well from a defensive perspective to navigate investor portfolios through such a volatile period. Coming to the fixed income investments, we saw the past year where FDs rates started at about 4-5%, growing up to about 7% pre-tax more recently. During this, we introduced a new offering on the alternate side in terms of asset leasing. We launched this about 6 months back, and happy to share that we've seen strong investor interest as well as a lot of newspaper coverage explaining what the proposition is. In terms of numbers, although it's been just about 6 months, we are happy to share that there have been 0 defaults, 100% payments as per stated, and almost a 13% IRR delivered on a post-tax basis on 2 to 3 year investments, which is more than double what FDs gave you. And not only this, even in a shorter tenure of up to a year, where savings accounts or FDs give about 4 to 6% pre-tax, we delivered 8% post-tax. That's the kind of uptick we generated through the addition of asset leasing. Moving on to our latest addition, on the venture capital platform, we added something to facilitate early stage startup investments. While it has been a tough year, we have seen activities slow down in startup fundraisers. We've still been able to close deals across sectors, whether it be EdTech, OTT, D2C, logistics, EV, etc. Where the total raised by our startups have been over $30 million, seeing participation from highly rated VCs like Bloom, Kalari, DSG, etc. We see this as a big area going forward as this space continues to evolve and many more opportunities arise as India sees even more unicorns. All in all, we thank everyone for continuing to trust us in this investment journey with your portfolios. Now, without further ado, I would like to call upon my wife, Twinkle Goel, our Head of Business Development, to introduce Mr. Pankaj Tibrewal. Thank you, Vivek. I am elated to introduce to you Mr. Pankaj Tibrewal. With the ups and downs that the market has seen, I'm sure everyone here have questions about the future, and who better to address it than him, the master himself. Pankaj Tibrewal has a rich experience of almost 2 decades in financial markets. Pankaj manages schemes such as Kotak Emerging Equities, Kotak Small Cap, and Kotak Equity Hybrid at Kotak AMC, where he manages 35,000 crore AUM. Pankaj has been featured in the top 10 fund managers in India for 6 consecutive years, for 2016 to 21. He's also featured in the top fund management in Economic Times in 2016, 17, 19, 20, and 21. A commerce graduate from St. Xavier's College, Calcutta, Pankaj holds a master's degree in finance from Manchester University. His hobbies include listening to Hindi music, traveling, and reading. We're happy to have you here. Over to you. Thank you. Thank you, Twinkle, and a very good evening to all of you. A very good evening to all of you. Okay, thank you. Good evening. Good evening. ठीक है. So आज का सेशन ट्विंकल और विवेक ने बोला कि मार्केट इतना ऊपर नीचे कुछ, मैं बोला मुझे भी नहीं पता मार्केट क्या हो रहा है, बट लेट्स अटेम्प्ट
to do some debate and discussion. But rather than focusing on very short term, let me also take this opportunity and for everybody कि देश में कुछ बड़ा change हो रहा है. And I traveled all across the country over the last 20-25 days. And जो change मुझे दिख रही है वो last 15-18 साल में मैंने नहीं देखा देश के अंदर. And I thought that I'll touch those things also, so that in the short term volatility you don't lose out the bigger picture which is changing in the country. And I'll keep it very simple so that everybody can relate with what I am saying today. Okay? And along that, I will also mention कि भाई क्या themes and opportunity मुझे next 3-5-7 साल में लग रहे हैं जहाँ आने वाले time पर अपना पैसा बन सकता है. हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा ना? चलेगा, चलेगा. That's good. So अगर आज आप विश्व में देखो across the globe, I think there's a perfect storm right now which is happening. Okay? We all know what is happening in US. 0.25% ब्याज दर था 25 basis point, आज वो 4% है 8 महीने के अंदर, right? And everything in US has a loan attached to it. घर हो, गाड़ी हो, credit card हो, education loan हो, सब कुछ हो. And the data which I am seeing is not very healthy. Every retailer in the US thought कि pent up demand जो आया है वो चलता ही जाएगा कोविड के बाद, और जिसको एक नॉर्मल चीज़ ऑर्डर करनी थी उसने 5 ऑर्डर कर दी बिकॉज सप्लाई चेन क्रंच था. चाइना बीच बीच में माल भेज रहा था, नहीं भेज रहा था. एंड अब क्या हुआ है कि सडनली व्हेन सप्लाई चेन हैज स्टार्टेड टू नॉर्मलाइज and demand has shrunk, suddenly that retailer is sitting with not 1 but 4 pieces of that inventory. And many companies right now after the second quarter are coming and saying that we have to take a write-off of the inventory which is sitting. And US is a consumption driven market. अगर वहाँ consumption थोड़ी भी नीचे जाती है तो it has a ripple effect which has started to happen. Friends, this is the first time in US, it is the first time in the history in US that all the asset classes has gone for a toss. Bond market is in losses. 0.25% has moved to 4%, तो bond में losses आ गए. Equity market वैसे ही 20% down है. Nasdaq 30% down है. Third जो सबसे important asset class आया, आप कोई बात भी नहीं करता, वो So Terra Luna 100% down है, Bitcoin 70% down है, और उसके बीच में 80% से 90% के बीच की लाइन लगी हुई है. और चौथा रहा रियल एस्टेट. द न्यू सेल्स हैव जस्ट गॉन डाउन लाइक दिस एंड द रियल एस्टेट प्राइसेस हैव आल्सो स्टार्टेड टू करेक्ट. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ऑल द 4 एसेट क्लासेस इन यूएस हैव स्टार्टेड टू ब्लीड एंड नॉट मेकिंग मनी एट ऑल. नहीं तो नॉर्मली इक्विटी नीचे आता है तो बॉन्ड अच्छा करता है, गोल्ड अच्छा करता है, कुछ ना कुछ अच्छा करता है, लेकिन इस बार सारी चीज़ें यूएस में नीचे. एंड द वेल्थ इफेक्ट विच इज स्टार्टिंग टू प्ले आउट इन द डिस्क्रिशनरी, बिकॉज आदमी जब अच्छा फील करता है तो जाके एक नई गाड़ी ले लेता है, अच्छा फील करता है तो एक लुई विटॉन का बैग ले लेता है, बेल्ट ले लेता है, जूता ले लेता है. बट व्हेन योर वेल्थ इफेक्ट इज नॉट देयर, then how do you go and spend? And that is, I think, started to play out early days, but I am seeing in US that the demand slowdown could be very, very severe in the coming year. And what Meta is doing, what some of the other tech companies have started laying down, because they have realized that ये जो cost build-up किया था वो sustainable नहीं है. तो clearly I think US is in a tough spot. हो सकता है Fed कहीं ना कहीं रुकेगा next 2-3 महीने में, 4.5-5% के आसपास रोक देगा, लेकिन जो डिमांड डिस्ट्रक्शन उसके बाद आएगी वो कोई भी आज फोरकास्ट नहीं कर रहा है. एंड इक्विटी मार्केट तभी चलता है जब आपके पास ग्रोथ रहती है. इक्विटी मार्केट इज नॉट सो बॉदर्ड अबाउट इंटरेस्ट रेट्स, बट द रेपरकशन आफ्टर इंटरेस्ट रेट रेज हाइक विच ऑलवेज हैपन्स. एंड फेड इस बार क्लियर है कि मैं रुकूंगा नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर है उसके ऊपर कि मैं ब्याज दर बढ़ाता रहूँगा जब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा. क्लियरली वो प्ले आउट आपके सामने यूएस में हो रहा है. एंड यूएस इज इन अ फिक्स. तो बीच बीच में यूएस में स्पाइक आते रहेगी मार्केट में, बट इज इट अ सस्टेनेबल वन? इफ यू आस्क मी हार्ट इन हार्ट, आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट वन. Coming a little to the eastern side, I think Europe is in a further bad position, friends. The kind of problems I am seeing in Europe, trust me, it is going from bad to worse.
And why is it happening? The entire continent was dependent on Russia for energy, right? 70% उनकी total energy requirement was imported from Russia. Because last 7-8 साल में उन्होंने अपने सारे कोयले वाले प्लांट बंद कर दिए थर्मल के, उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बंद कर दिए, और रिजल्ट क्या हुआ, वो गैस पर डिपेंडेंट हो गए रशिया पर. अब पुतिन साहब ने पूरा टैप कर दिया बंद. गैस कॉस्ट फ्रेंड्स 2 years, exactly 2 years back in October, was $3 MMBTU. Today it's $40 MMBTU. $3 वाला $40 चला गया. Every company is struggling. मेरे इनबॉक्स में गूगल अलर्ट लगाया हुआ है कि कौन सी कंपनी अपना प्रोडक्शन बंद कर रही है, कौन सी अपनी कंपनी स्केल डाउन कर रही है. Across the board I am seeing that every day I am getting some of the other big company in Europe is shutting down their production and shutting down their one production line or scaling down because energy नहीं है, उनके पास गैस नहीं है, और गैस है भी तो उस भाव पर बना के प्रोडक्शन उनको पवड़ रहा नहीं है. Let me give you small examples. Germany and Italy still commands 19% of the world's export in engineering goods and automobiles. आज डिमांड होने के बाद भी वो लोग उस कॉस्ट में नहीं बना पा रहे हैं बिकॉज उनके एनर्जी कॉस्ट हैज़ गॉन थ्रू द रूफ और अवेलेबिलिटी नहीं है. आई डोंट नो वेदर यू गाइज रेड इन स्विट्जरलैंड देयर इज अ लॉ विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड कि अगर आपने घर के अंदर 19 डिग्री से ऊपर अगर गैस वार्मिंग करोगे आपको जेल में डाल देंगे. 19 डिग्री के ऊपर आप घर में वार्म नहीं कर सकते हो बिकॉज एक्स्ट्रा गैस कंजम्पशन होगा और गैस उनके पास है नहीं. सो देयर इज अ very difficult situation in Europe, and I'm sure all of you are experiencing, reading with our friends, relative ourselves, going to London, कि the mugging has increased, snatching wallets, purses, all those have gone through the roof because 3 pound है आधे यूरोप के पास, आधे लंदन के पास to survive their one day meal. 3 pound, most of the families in UK. It's a very, very tough situation. The energy cost of a household has gone up by 50%, जिसमें कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है. मार्च में अगर आपका $X था, आज X प्लस 50% आप ऐड कर दो, और वहाँ वेजेस एंड सैलरीज ऐसे इंक्रीज नहीं होते हैं, तो कहाँ से आप सर्वाइव कर पाओगे. सो यूरोप इज इन अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन, एंड द कमिंग टू ईस्ट फर्दर इज आवर नेबर चाइना. लेसर सेड देन डन. वो कंट्री अपने आप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है अंदर में. ग्राउंड लेवल पर थिंग्स आर वेरी वेरी बैड. दे डोंट लेट द डेटा कम आउट, बट दे आर स्टिल फॉलोइंग जीरो कोविड पॉलिसी. इकोनॉमी पूरी खुली नहीं है, एंड दिस जाइपिंग विच हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर द 3rd टाइम हैज़ कम अप विथ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज ऑन इकोनॉमी. रियल इस्टेट में बहुत हालत ख़राब है वहाँ ग्राउंड लेवल पर. लार्ज रियल इस्टेट कंपनीज कुड बी सब्सिडाइज्ड as you move ahead by government and nationalized also, and economic growth has gone very very low. And my sense is that the first time in China demographics have started to play opposite. पहले क्या था, लास्ट 30 साल चाइना क्यों ग्रो किया, क्योंकि यंग पॉपुलेशन वॉज ग्रोइंग. 2023 will be the first year when China will see absolute decline in population. And now the Chinese guys also want one kid, and they are not getting married before 32 to 35 years of age. Exactly what happened in the West, which is Europe and US many, many years back. So demographics will, over the next 10-15 years, which was the biggest support for Chinese growth, will start to work in the opposite direction. Am I clear? प्लीज़ हाँ या ना. एम आई एबल टू एक्सप्लेन वेरी वेरी मतलब ठीक से. सो यूएस प्रॉब्लम, यूरोप में अपना प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ एनर्जी कॉस्ट. आई डोंट नो व्हेन द वॉर विल एंड. वी ऑल हैव गॉन रॉन्ग ऑन द वॉर प्रोडिक्शन बिकॉज वी ऑल थॉट दैट द वॉर विल फिनिश इन 2-3 महीना. रशिया है निपटा देगा. 9 months द वॉर हैज लास्टेड. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग. आई डोंट सी अ लाइट ऑफ द डे. कमिंग टू चाइना, अदर लार्ज इकोनॉमी, I think there is a problem. Now let's look at India, friends. I think it's a perfect oasis in the desert. And ये जो storm तूफान चल रहा है पूरे विश्व में,
उसमें हम कहीं ना कहीं जो कोविड में हमने पॉलिसीज़ की, उस समय हमने बहुत गाली दी होगी, लेकिन आज हाइंडसाइट में लगता है कि हमने जो पैसा प्रिंट नहीं किया, जो रेस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंकर्स ने किया, उसके कारण आज इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है और आज वो इन्फ्लेशन उस तरीके से नहीं पहुंचा जो विश्व में पहला है. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम वेयर US inflation is higher than the Indian inflation. And for the first time that bond yield US में 4.5% है 10 साल का बॉन्ड, हमारे यहाँ 7.5% है, 3% का गैप है, जो पहले 5 से 6-7% आपके सामने होता था. So clearly somewhere the overall thought process is that we want to provide long-term stability is started to work in our favor. In the short term, let me tell you the negatives which are there. पहले negatives बात करते हैं, उसके बाद positives पर जाते हैं. Negatives है कि incremental 3 साल से जो हम अच्छा डिमांड इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे थे, मुझे वेरी नियर टर्म में थोड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ पर कंसर्न आ रहा है. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट 3-4 महीने, एंड मेनी कंपनीज, पीपल आर देयर हु आर रिलेटेड टू बिजनेस, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, माई ग्राउंड सर्वे सजेस्ट दैट थोड़ा स्लो डाउन है. चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल कंपनी में हो, टाइल्स, प्लाईवुड सब में हो, या कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज में हो, कहीं ना कहीं इकोनॉमी में थोड़ा सा स्लो डाउन है और लिक्विडिटी टाइट हो रही है. पहली बार हुआ है कि बैंकिंग सिस्टम जो 3.5 साल से सरप्लस था, करीबन 2-2.5-3 लाख करोड़ का सरप्लस था, वो नेगेटिव हो गया. और जितनी भी बड़ी कंपनियों से आप बात करो, उनका वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच होने लग गया है. तो कहीं ना कहीं जो रोटेशन ऑफ पैसा था, जो लास्ट 3 साल में और स्पेशली कोविड में बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, वो कहीं ना कहीं अटक रहा है. एंड दिस इज द बिगेस्ट बैरोमीटर फॉर मी, बिकॉज इसका इम्पैक्ट आपके P&L में बाद में 2 क्वार्टर के बाद हर कंपनियों में दिखता है. तो कैश फ्लो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है और लिक्विडिटी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर टाइट हो रही है. प्लीज कीप दैट इन माइंड बिकॉज आई एम सीइंग अर्ली साइंस ऑफ दैट. द थर्ड वन इज दैट RBI has raised interest rates almost by 2 percentage points in the last 6 months. Not so aggressively like US कि वो 0.25 का 4% तक ले गए. हम almost 3.5% पर थे, आज हम 5.5% पर हैं, तो 2% हमने भी बढ़ाया. और उसका impact आप देख रहे हैं कि banks have started to pass on the interest rate increase to home loan, to MCLR, to corporates, everybody. I think that impact will start showing over the next 2-3 quarters in India also. But these are some of the smaller short-term impact things which I am seeing. And the fourth thing which I have worried upon is that the RBI has used $100 billion in forex reserve to defend the currency. हम 80 रुपया को डिफेंड करने में देश में $100 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व यूज कर दिया. और ये फॉरेक्स रिजर्व तभी भी डिफेंड नहीं कर पाया. एंड नाउ वी हैव सीन दैट रूपी हैज क्रॉस्ड 82, 83. कल का खाली दिन छोड़ दें, बट 82, 83, एंड माई सेंस इज रूपी कैन डेप्रिशिएट बाय अनदर 2 to 4%, 5% in the next 12 to 18 months. So please keep rupee depreciation also in mind. When you combine all these things together, I think though we are relatively far better than what is happening in the rest of the world, but incremental change in our economy has also started to come slightly negative. Okay? 3 साल हमारे पास एकदम स्ट्रॉन्ग रन रहा. कोविड में हमने जो किया, प्रिंटिंग ऑफ प्रेस नहीं, मनी नहीं किया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, पॉलिसी स्टेबिलिटी दी, सब चीज़ अच्छी है. लेकिन आने वाले समय में जो शॉक ऑब्जर्वर्स थे इकोनॉमी के अंदर, वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं. दिस इज टाइम टू बी अवेयर, नॉट बिवेयर. आर यू गाइज विथ मी? कि भाई थोड़ा सा, मतलब आज के दिन तो ऐसा है कि हम ही हैं, वो वाला बात नहीं है. इंडिया में कभी भी बहुत ऑप्टिमिस्ट नहीं होने का, कभी भी बहुत पेसिमिस्ट नहीं होने का, एक बैलेंस व्यू करके चलने का. यू विल बी मच बेटर ऑफ इन योर overall business and investments is my always belief. And one thing which is a big joker in the pack is the energy cost for us also. We import crude, 80% of our energy cost is imported.
though our reliance on energy is coming down on imported crude, because last हमने देखा है कि सोलर आ गया, विंड आ गया, काफ़ी सारे गैस पर काम हो रहा है, सो हमारा क्रूड का रिलायंस कम हुआ है, बट आज भी 70 से 80% हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं. अगर ये $125-150 हो गया, सपोज जो हमने देखा था 6 महीना पहले, you will have a problem, because currency will react, fiscal deficit will go haywire, and so forth. But these are the slight areas in the near term to be concerned about, but not a major concern to be worried about for the next 3-5 years, because friends, this time the foundation which has been laid in the country, I think is just making me very, very positive from a medium to long term. Let me tell you some of the things which I believe will shape India in the next 3 to 5 years in a very different way. And ये अपने सामने हो रहा है. पहला, last 20 days I traveled in the entire engineering belt of India. Okay? Pune, Chakan, Coimbatore, UP, Andhra. Friends, the kind of positivity, the kind of optimism I have seen among entrepreneurs, I have not seen for more than a decade now. छोटे से छोटा SME बोलता है बॉस 2 साल का ऑर्डर बुक मेरा फुल है. इंजीनियरिंग, प्रेसिशन इंजीनियरिंग, लाइट इंजीनियरिंग, ऑटो एंग्स एंड सो फोर्थ. I went to Pune. I was in JW Marriott at Pune. When I went for the breakfast, there were only 10 Indians who were sitting and having breakfast. The entire hotel was full of Germans. I spoke to three table. कोई M&A करने आया है, कोई अपना टाई अप करने आया because वहाँ एनर्जी कॉस्ट हैव गॉन थ्रू द रूफ, कोई कुछ करने आया, कोई कुछ करने आया. एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इंडियन engineering sector and manufacturing sector will see a secular growth, in my view, and there are 3-4 reasons for it. The first one is that balance sheets in India, of corporate India, is in the best of the shape in the entire world. Okay? Today, corporate India, जो top 500,000 कंपनियां हैं इंडिया की, they are at 46% corporate debt to GDP. हम लोग 4 साल पहले ये नंबर 64% होता था, हम 64% से 46% पर आ गए, बिकॉज आपने जितनी कैश जनरेट की लास्ट 4 साल में, आपने कर्जे को चुकाने में लगा दिया. आज आपकी बैलेंस शीट क्लीन है, एंड जैसे जैसे डिमांड ऊपर जा रहा है, आप नई कैपेसिटी लगाने की सोच रहे हो. सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस आर राइजिंग, बैलेंस शीट इज इन गुड शेप, एंड आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द कॉर्पोरेट इंडिया. The second big important thing is, friends, which in my view will be a game changer for India in the coming decade. Okay? आपने PLI का नाम सुना है? कोई बताएगा PLI क्या होता है? Production Linked Incentive Scheme. This government introduced 3 years back. There are 14 sectors which government has identified, जिसमें electronics सबसे बड़ी है, chemicals है, pharma है, डिफेंस है, टेक्सटाइल्स है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी है, सोलर पैनल है, सो फोर्थ. गवर्नमेंट ने क्या बोला? आप हर बार आते हो कि चाइना हमसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, 3 से 5% वो मेरे से कॉम्पिटिटिव है, लॉजिस्टिक कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फलाना कॉस्ट, ढिकाना कॉस्ट. हम वो 3 से 5-6% आपको इंसेंटिव देंगे, लेकिन नहीं कि आप केपेक्स पर नहीं देंगे, आप प्लांट लगाओ, उससे जितना प्रोडक्शन निकालोगे उस पर हम देंगे. क्योंकि प्लांट लगाने में लोगों ने चोरी बहुत की है. वो 100 रुपया को 200 रुपया इन्फ्लेट करके बहुत लोगों ने दिखाया और इंसेंटिव ले लिया टेक्सटाइल में. तो वो नहीं करना है, आप प्रोडक्शन करो और वो करके आप मेरे को दिखाओ. फ्रेंड्स, आई कैन जस्ट टेल यू, 3 सेक्टर में जो काम हो रहा है PLI पर, इट्स माइंड ब्लोइंग. द फर्स्ट वन आई वॉन्ट टू टच अपॉन इज इलेक्ट्रॉनिक्स. इट्स माई बिलीव that in the next 3 years or 4 years max, India will produce 75 crore handsets which it will use for domestic as well as export. You saw iPhone? For the first time in the history of the country, iPhone is getting 14 manufactured in India. And iPhone के 3 manufacturer हैं, Foxconn, Pegitron, Wistron.
ये 3 जन इंडिया में कभी नहीं थे। तीनों ने PLI स्कीम में अप्लाई की, तीनों को शॉर्टलिस्ट किया गया, तीनों ने अपनी फैक्ट्री लगाई। एंड फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी कभी एक जगह जाना चाहे तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड श्री सिटी इन आंध्रा। नाम सुना है आपने? किसी ने भी सुना है? श्री सिटी। प्लीज गो टू दैट प्लेस एंड हैव अ लुक ऑफ व्हाट इंडिया इज हैविंग। श्री सिटी के अंदर 10,000 एकड़ ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। When I went to meet the CEO of the Sri City, he told there are 200 applications pending for setting up factories in Sri City. I asked him, how is it possible? India में 200 कंपनियां तो केपेक्स नहीं करती हैं। Then he explained me कि Foxconn, Wistron, Pegatron आने के बाद वो कैमरा मॉड्यूल गाय को भी लगाना है, वो माइक वाले को भी लगाना है, क्योंकि एक फ़ोन का असेंबली करने के लिए आपको 50 पीसेस चाहिए। अब जब वॉल्यूम आने लगा तो सारे ये पूरी इकोसिस्टम आके अपना इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने लग गई है। एंड दैट्स द रीज़न आईफोन इज सेलिंग कि इंक्रीमेंटली आई विल रिड्यूस माई चाइना एक्सपोजर एंड इंक्रीज माई इंडिया एक्सपोजर। देयर इज अ लिस्टेड कंपनी इन इंडिया, दे आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग फॉर वन ऑफ द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट कंपनी ऑन फोन, मोटोरोला। मोटोरोला का 2 यूनिट था, एक चाइना में एक ब्राज़ील में। Can you believe that he has opened the 3rd unit in India? And incrementally, 20% of Motorola's production globally will not happen from China or Brazil, but from India. And in my view, if PLI is implemented well, government doesn't do any problem in terms of self-goal. I repeat again, self-goal. I think electronic industry will see a very different avatar in the next 3-5 years. And similarly, I am seeing in ACs. इंडिया में 4 कंप्रेसर फैक्ट्री आ रहे हैं जो कभी नहीं था। आज इंडोर यूनिट भी बाहर से आता था, आउटडोर यूनिट भी बाहर से आता था, कंप्रेसर भी बाहर से आता था। जो आपके घर में AC लगा हुआ है उसमें 75% मैन्युफैक्चरिंग चाइना की थी, 25% असेंबली खाली इंडिया में होती थी। फ्रेंड्स, इट्स माई firm conviction, because I am seeing the data at the ground, that it will be just the opposite in next 3 years, max to max 4 years. Daikin is coming with one of the world's largest compressor factory in India. In Gujarat, it should be operational anytime. Voltas is coming with a factory. Blue Star is coming with a factory in Sri City, and so many others. So I think the entire component and ecosystem in electronics, ACs, phones, mobiles, and the entire wearables, everything will undergo a massive change, and India will become not only a hub for domestic, but also export. The same things are happening in pharma, textile, defense, and so on. So PLI is something leading to positivity. The third thing which is happening is in defense. Every company I met on the engineering belt, बोला 4 साल पहले हम सोच रहे थे बंद कर दे अपनी दुकान, और अब 4 साल के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है आप लोग से मिलने की भी। तो क्या हो रहा है भाई? बोला 70% जो इंडिजिनाइजेशन गवर्नमेंट ने फॉर्म कर दिया कि अब अगर 100 रुपया का प्रोक्योरमेंट है वो 70 रुपया इंडिया से ही होना है। इट इज़ लीडिंग टू ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्डर इनफ्लो, नॉट ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट बट डिफेंस और एक्सपोर्ट। आई सेड प्लीज एक्सप्लेन। सो देयर इज एंड जस्ट टू पुट वन डिस्क्लेमर अप फ्रंट, I may use some of the names of the companies just for reference and example purposes. Please don't construe it as buying or selling decision. Just as a disclaimer, let me put it up front, because कल कोई जाके खरीद लेगा, बोलेगा जी आपने तो बात की थी, please there is no, and I may have interest in the portfolio. So as a regulatory thing, let me just put a upfront disclaimer that I may use some names just for an example purposes and reference. So there is in public news, there is a company called Solar Industries, the largest explosive manufacturer of country and the world. They have developed Pinaka जो missiles हैं, right? अब गवर्नमेंट का अभी तक ऑर्डर नहीं आया, गवर्नमेंट इज स्टिल फाइनलाइजिंग RFQ फलाना ढिकाना. Armenia has placed an order on Ordnance Board and Solar पिनाका के लिए. क्यों? क्योंकि अर्मेनिया और अजरबैजान का झगड़ा चल रहा है एंड इंडिया इज गेनिंग बेनिफिट. कौन सोचा था इंडियन मैन्युफैक्चरर्स विल एक्सपोर्ट डिफेंस? हम हमेशा रशिया को, यूएस को, यूके को देखते थे. आज वो लोग हमारे पास आ रहे हैं कि आप हमें एक्सपोर्ट कर सकते हो. देयर इज अ कंपनी इन पुणे ऑन ऑटो एंसिलरी.
They are now the world's largest barrel manufacturer. गन के साथ बैरल लगती है. अब यूएस वांटेड टू सप्लाई टू यूक्रेन, उनके पास कैपेसिटी नहीं है, उन्होंने इस पर दिया, ये यूक्रेन को सप्लाई करेगा. These are the changes which are happening, and I think this will only escalate unless we do a self-goal as a government or as a nation. So PLI is doing extremely well, and the third, friends, more than the China Plus, where large companies are looking to diversify their operations to India, I think the bigger theme over the next 3 years will be Euro Plus, which I spoke about. Large chemical factories, large auto ancillaries, large light precision engineering, जो low value added बनाते थे यूरोप में, they all are looking to outsource it to the Indian manufacturers. There's one portfolio company in my portfolio which makes bearings. 5 quarters back, the parent wanted to diversify to China. मतलब incremental production. The CEO became the Asia Pac CEO, Indian CEO became the Asia Pac CEO, and he fought for it. कि भाई आप चाइना क्यों ले जा रहे हो, सेम क्वालिटी सेम प्रेसिशन मैं इंडिया में दूंगा, बेटर प्राइस. इट्स ऑन पब्लिक रिकॉर्ड. 4 quarters now, the export is growing at 50% every year on year. And the export, which was 10% of the revenue, is now become 16% of the revenue. And friends, I see this opportunity in many of the companies which has a European parent or a US parent, that incrementally, अगर engineering में, talent में, skill में, आपको अगर second replacement चाहिए, you have no other alternative apart from China to come to India. Because this is the only country which manufactures or produces 1 million engineers a year. बांग्लादेश में आप टेक्सटाइल ले जा सकते हो, शू ले जा सकते हो, बक्सा ले जा सकते हो, बट जहाँ आपको इंजीनियरिंग स्किल सेट चाहिए, आप बांग्लादेश, वियतनाम नहीं ले जा सकते हो. एंड माई सेंस इज वी आर नॉट बिकमिंग चाइना, नो वेज, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, दे आर फार अहेड इन एवरीथिंग इन नेक्स्ट 20-25 ईयर्स. बट आई थिंक द इंक्रीमेंटल चेंज कि इतने सालों के बाद हमारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग $450 बिलियन है, क्या वो $1 ट्रिलियन हो सकता है नेक्स्ट 5-7 साल में? आई एम ऑफ द फर्म कन्विक्शन द ट्रेंड विच आई एम सीइंग चेंज विल मेक इट हैपन. एंड नाउ पीपल आर रिकग्नाइजिंग, जो कॉर्पोरेट रेट टैक्स कट हुआ था, 25% किया था, नए मैन्युफैक्चरिंग के लिए 17% किया था, हाउ दैट इम्पैक्ट इज नाउ हैपनिंग, दैट ऑन द टैक्स रेट वी आर फार मोर कॉम्पिटिटिव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड फ्रेंड्स, जो वेब का पोर्टल आया, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड, प्लीज आके देखो. आप अपने ऑफिस में बैठ के, लंदन में बैठ के आपको यहाँ फैक्ट्री डालनी है, सारा अप्रूवल प्रोसेस यू कैन डू ऑन अ क्लिक, where 15 states have already joined. आपको एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा एक स्टेट से. अगर वो स्टेट नहीं रिस्पॉन्ड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ब्लैकलिस्ट देम ऑल्सो. राइट फ्रॉम लैंड एक्विजिशन, लैंड अप्रूवल, pollution board, water control, the entire portal is catering to the entire investment cycle in India. It has never happened before. And that's the reason I believe that manufacturing will be a biggest theme in the next 3 to 5-7 years. Very few people believed me 1.5 years back. Now few are believing it, but I see this trend as a mega trend for the next 5 years. And anybody related to manufacturing out there in this room, please be bullish on your business rather than being bearish on your business. And be competitive. I think this is my ground, thing which I am seeing at the ground. मैं सब दिल से बोल रहा हूँ ना, मैं presentation use कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, but this is the change mega trend which I am seeing, friends. The third mega trend, friends, which I am seeing is the entire IT stack which we have developed. It's happening in front of us. And very less people in India are appreciating what we have done in the last 5 years, 6 years. 3 years back, friends, in this room I would have told COVID आने वाला है, हम वैक्सीन प्रोड्यूस करेंगे और एक आधार कार्ड के बेसिस पर हम पूरे देश को 6 से 9 महीने के अंदर वैक्सीनेट कर देंगे, राइट टू द लोएस्ट तालुका एंड लोएस्ट विलेज. सही से बताना, आप लोग सब हंसते थे मेरे ऊपर, कोई बिलीव नहीं करता था. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट 100 करोड़ बैंक, 100 करोड़ आधार
and 100 crore mobile connection has been the deadliest cocktail India has ever seen. हाँ या ना? एक आधार कार्ड पर सिरिंज आपके स्किन में गया और मोबाइल पर आपका सर्टिफिकेट 5 मिनट में था. आज भी मेरे यूएस में दोस्त लोग पॉकेट में लेके अपना फिजिकल सर्टिफिकेट घूम रहे हैं. फैक्ट है. दिस IT stack, friends, don't take it lightly. This will revolutionize the way India has operated over the last 75 years. And the reason I am saying so, please hear me out. आज गवर्नमेंट को लोएस्ट तालुका तक पैसा पहुंचाना है, एग्जीक्यूशन करनी है, उसको लीकेज के लिए अब फिक्र नहीं है. उसको ग्राउंड लेवल तक पता है कि कहाँ कहाँ क्या है, बैंक अकाउंट किसका है, कैसे क्या बेनिफिशियरी है, आपके पास पैसा विद इन अ वीक जो ईयर्स लगते थे वो पहुंच जाएगा. पॉलिसी एग्जीक्यूशन फास्ट हो गई. नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट विच इज माई बिलीफ कि ये देश में होने वाला है. कोविड में एक सबसे बड़ा चेंज हुआ है. क्या हुआ है कि मोबाइल खिलौना वॉलेट बन गया है. राइट? आपके पास आज आपका दूध वाला आता है, पेपर वाला आता है, बाई आती है, सब्जी वाला आता है, रेस्टोरेंट में जाते हो, क्या बोलते हैं? सर पेटीएम कर देना, सर जीपे कर देना, फलाना कर देना, डिकाना कर देना. हाँ, एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग से. इस रूम में किसी के पास 5,000 रुपया के ऊपर पॉकेट में है क्या? होगा, घबराना, मैं ले रहा नहीं हूं, डोंट वरी, मैं आपसे ले रहा नहीं हूं, बट खाली हाथ रेस करो. 5,000 7,000 जो भी. एक भाभी लोग के पास होगा? नहीं है? कोई के पास नहीं है? कोई भी नहीं? 2 जन. एंड 3 साल पहले हर जन के पॉकेट में 3, 5, 7,000 रुपया होता था. क्यों? सोच के देखना. क्योंकि आज आपको लगता है कि मेरा मोबाइल मेरा वॉलेट है. वाई नीड टू कैरी कैश? करना है तो जीपे कर देंगे, सीधा कुछ भी है तरीका है कर देंगे. फ्रेंड्स, नाउ थिंक हाउ इंडिया विल चेंज. इंडिया में कच्चा पक्का का आज भी चलता है और ये पहले से चलते आ रहा है. और स्पेशली मारवाड़ी कम्युनिटी में भी ये कच्चा पक्कों को पैसे तोड़ो मत, कच्चा से पेमेंट कर दो. राइट? फैक्ट है ना. दिमाग में तो यही रहता है ना भाई कि भाई कच्चा का पैसा है. नाउ आप सोचो वो मिठाई वाला XYZ का नाम ले लेते हैं, ब्रिजवासी ले लेते हैं, चलो XYZ, चलो ठीक है. अब उसके पास 50 लाख गल्ला में आता था, उसमें से 30-40 लाख कैश होता था. ना गवर्नमेंट को पता, खाली उसी को पता. अब 40 से 50% ट्रांजैक्शन उसका डिजिटल होने लग गया. चाहे वो QR कोड करो या PA करो, वो करो. अब वो IT वाला आप सबको तो देख रहा है, मेरे को भी देख रहा है, उसको भी देख रहा है. और 3 साल बाद जब वो उसको बोलेगा कि भाई इतना पैसा कमा रहे हो, टैक्स कहाँ भर रहे हो, एंड ट्रस्ट मी, जो GST में हुआ 60-70 हज़ार करोड़ का अपना मंथली कलेक्शन होता था, आज 1.5 लाख करोड़ कंसिस्टेंटली कलेक्शन है. क्यों? क्योंकि आपने ओवरलोडिंग में काम कम कर दिया, आपने जो चोरी चमारी थी वो कम कर दी, आपने पूरा लीकेज को बंद कर दिया. सेम चीज़ पर्सनल टैक्स में होगा, कॉर्पोरेट टैक्स में होगा, जहाँ पर कच्चा का काम कम होगा. और ये जो बिहेवियर चेंज कोविड में हुआ है, ये जल्दी से जाने वाला नहीं है. आज बहुत सारे मिलेनियल्स इस रूम में बैठे हैं. आपके पापा लोग पुर्जा का काम करते हैं, आप उनको करने बोल दो, बोलेगा कुछ लगता है क्रिमिनल एक्ट करा रहे हो आप. आप थोड़ा सा कैश घर में लेके आ जाओ, लगेगा कोई 2 नंबर या काम कर रहा है पापा. कैश कैसे आ रहा है? बिकॉज दे हैव नॉट सीन दिस वर्ल्ड. It's a fact, right? It's a generation shift which is happening. And my sense is this will shape the way the taxation and the way the tax to GDP ratio in the India is. आज चाहे 6 करोड़ लोग फाइल करते हैं, लेकिन पूरा देश 1 करोड़ लोग ही चला रहे हैं. फैक्ट है ये, because they are the tax filers. And with this entire IT stack, friends, I believe that you will see a massive transformation over the next 3-5 years, where the leakage and the loopholes will plug down, and you will see a massive change which is happening. That's the third mega trend which I believe will happen. The fourth one is that the big is getting bigger, and this is a fact. Yes, medium-sized entrepreneurs, big मतलब ये नहीं है कि खाली मतलब जो large corporates हैं, big का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं. आज टाइल वाला लीडर मिड साइज हो सकता है,
लेकिन मैं उसको बिग मानता हूँ क्योंकि वो अपने सेक्टर का लीडर है। आज प्लाईवुड वाला मिड साइज कंपनी हो सकता है, लेकिन मैं उसको लीडर मांगता हूँ तो वो बिग है मेरे लिए। तो एवरी इंडस्ट्री स्टार्टेड टू सी कंसोलिडेशन, एंड जो बड़ा सोचेगा, जो अपने फर्म को अलग तरीके से चलाएगा, प्रोसेस डालेगा, डेलीगेशन करेगा, वो आने वाले टाइम पर सर्वाइव करेगा, नहीं तो वो धीरे धीरे साइडलाइन होता चला जाएगा। एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ टुडेज लाइफ। टुडेज इंक्रीमेंटल बैंक में टोटल इंडिया में 50 बैंक है, लेकिन टॉप 5 बैंक्स आर 80% मार्केट शेयर इन इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट। There are many steel companies. The top 3 are 90% of India's market. Telecom में आपने देखा, the now 2 guys are virtually 90% of the market of India. Similarly, in every industry, I am seeing consolidation happening, the big becoming bigger. So if you want to bet in the stock market, bet on companies which have good balance sheet, cash flows, and the leaders in their sector, 1 to 5, 6, 7. उसके नीचे जाने की आपकी कोई मतलब नहीं है. So this is the entire third piece on big getting bigger. The fourth, which I firmly believe, is the export. I spoke about other things. Let me tell you some stories which will surprise you, unheard stories in India. You have heard the place called Morbi? टाइल बनाता है, राइट? 750 मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, वहाँ पर 750 लोग, ना कोई वहाँ इक्विवेलेंट ऑफ TCS है, ना इन्फोसिस है, ना कोई है। 750 गुज्जू प्रमोटर अपना दुकान चला रहे हैं। 4 साल पहले मोरबी यूज टू एक्सपोर्ट 5,000 करोड़ का वर्थ ऑफ टाइल्स टू द वर्ल्ड, 5,000 करोड़। एंड उनका लोगो क्या है पता है? चीपर देन चाइना, बेटर देन इटली। क्योंकि इटालियन टाइल्स आर बेटर इन क्वालिटी, चाइनीज टाइल्स आर चीपर इन प्राइस। So their logo is cheaper than China, better than Italy. And this year, my friends, 4 साल पहले 5,000 करोड़, this year they will cross 17,000 crores worth of exports in tiles to the rest of the world. US में हमारा मार्केट शेयर 1% था, आज वो 1% वाला 9% हो गया। Not done by any large corporate. It is done by the small Gujju promoters sitting out there and working and doing export. And trust me, if I lay down 4 tiles, China wala, Morbi wala, Spain wala और Italy wala, China wala $4.5, India wala $3.5, Spain wala $7, €7.5 and Italy wala €9.5। चारों को मैं रख दूं, आप नहीं पहचान पाओगे कौन सा इटली का है, कौन सा चाइना का है, कौन सा मोरबी का है। सो इट्स अ मिथ दैट इंडियन क्वालिटी इज इन्फीरियर। यू गो टू मोरबी, यू विल बी सरप्राइज टू सी द काइंड ऑफ क्वालिटी फैक्ट्रीज दे हैव मैन्युफैक्चरिंग एंड द काइंड ऑफ सप्लाई दे आर डूइंग टू द इंटायर वर्ल्ड, इंक्लूडिंग US, यूरोप, एवरीबडी। दिस इज अ अनहर्ड स्टोरी ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर विच इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर नोज। एंड दिस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मेक्स मी बिलीव दैट आने वाला नेक्स्ट 5-7 साल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के लिए बहुत अलग होने वाला है। बीच बीच में बम्स आएंगे, बट दैट्स ओके। सो दीज आर द लार्ज अपॉर्चुनिटीज एंड थीम्स विच आई थिंक विल डू वेल। फाइनेंशियल्स विल डू वेल, बैंकिंग सेक्टर विल डू वेल, ऑटोज विल डू वेल। मुझे लगता है IT में थोड़ा नियर टर्म में स्टैग्नेशन रह सकता है बिकॉज ऑफ द डिमांड साइड। फार्मा ओवर अ पीरियड शुड डू वेल। सो ऐसे 5-6 सेक्टर्स हैं जहाँ पर मुझे लगता है आने वाले टाइम में स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज़ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी, कैन वी पिक द राइट कंपनीज इन दैट सेक्टर विच कैन जनरेट वेल्थ फॉर ऑल ऑफ अस ओवर द नेक्स्ट डेकेड और सो। लास्ट डेकेड में देयर अबाउट 40 कंपनीज विच बिकेम 10x in 10 years, मोर देन 10x in 10 years। और आने वाला डेकेड, जिसमें कि लास्ट डेकेड में आपको सब कुछ प्रॉब्लम हुआ, और आने वाले डेकेड में भी हेडविंड्स रहेंगे, बट थोड़ा टेलविंड लग रहा है मुझे मिलेगा अपने को। अगर वो मिल गया तो दैट 40 का नंबर विच बिकेम 10x in 10 years कुड बी हायर इन माई व्यू। हाँ, तो एग्रीकल्चर पर भी, इंफ्रा तो मैं बहुत बुलिश हूँ, जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। एग्री में मुझे लग रहा है थोड़ा पेन एक्सटेंड हो गया है, एंड फार्मर्स आर नॉट इन दैट ग्रेट शेप बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर थिंग्स। But I think they are coming out well. Global agri prices are doing very well. And farmer के हाथ में जो income है
that has started to increase. For the first time, I track a monthly data on farmer wage, मतलब labor wage in rural areas. That has started to go up. And जितने भी rural company से बात कर रहा हूँ, labor की supply वहाँ कम हो रही है. So that's doing well. And the last sector which I didn't touch, which is a big elephant in the room in the economy, is real estate, friends. I've been talking about for last 2 years. I think it's been in a new cycle. Don't get mandi in real estate. अभी actual user का है, ये cycle में तभी bubble बनेगा जब investor community, अभी तक नहीं आया. अभी भी investor community नहीं है, normal जिसको लेना है वही घर खरीद रहा है. And मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3-5 साल जब रियल इस्टेट अच्छा करता है ना, तो पूरी इकोनॉमी अच्छी करती है, क्योंकि 200 इंडस्ट्रियाज उसके साथ जुड़ी हैं. टाइल, प्लाईवुड, इलेक्ट्रिकल्स, एसीज, सीमेंट, स्टील, पाइप, सब चीज़ उसके साथ जुड़ा है. तो जब ये बड़ा एलिफेंट डांस करता है तो उसके साथ 200 इंडस्ट्रियाँ इर्द गिर्द डांस करती है और इकोनॉमी को रिजुविनेट करती है, विच वॉज मिसिंग इन द लास्ट 7-8-9 years. एंड दैट्स द रीज़न, फ्रेंड्स, कमिंग टू स्टॉक मार्केट्स, is that मुझे लग रहा है नियर टर्म में volatility will be high, but if you want to take a slightly 5-year call, please don't miss this opportunity. This is a time for wealth creation in India. If we miss this time, our kids won't be very kind to us. I'm being honest. अगर आप US में 80s और 90s वाला दहशत मिस किए एंड आपने बड़ा वेल्थ क्रिएशन मिस किया, या चाइना में भी सेम 90s and 2000 to 2010, on the hindsight you look at, you thought that what a fool I was, right? And I think that you should park a percentage of your wealth which you don't want to use and want to pass it to generation, because हम सबकी lifestyle capital is taken care of. उतना हमें lifestyle के लिए नहीं है, लेकिन हमें कीड़ा है कि कुछ ना कुछ करते रहने का मार्केट में, कि एक्टिवनेस लगे, और उस दौरान आपने कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब आप कर देते हो. कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर, आई अगेन एंड अगेन रिपीट. जिसने टेस्ट किया वही समझ सकता है, जिसने नहीं किया वो कभी समझेगा भी नहीं, लेकिन जो समझ गया वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता. 100 रुपया में आप 20 रुपया साइड कर दो, जिसमें आपको खुजली आप करते रहो, रोज जो करना करते रहो, लेकिन 80 रुपया को कंपाउंडिंग में मत उसको डिस्टर्ब करो, बिकॉज आई थिंक नियर में ऊपर नीचे आपको दिखाएगा, बट ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको ये वेल्थ जनरेट करके देगा. एंड आई थिंक इन नियर टर्म देयर कुड बी सम डाउनसाइड ऑल्सो. आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग. आई सी सर्टन हेडविंड्स इन द मार्केट. आई थिंक दैट मार्केट इज स्लाइटली एट द हायर टॉप राइट नाउ, बट वो टाइम करना मुश्किल है. 15,200 आया था अभी 4-5 महीना पहले, तो सबने बोला 14 जा रहा है. अब 15,200 वाला सीधा 18,200 है ना, किसने पकड़ पाया? 95% of the people have missed this rally, right? My sense is that timing will be very, very futile. And friends, I just, whenever I feel a little, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, I just look back last 30 years. 91 से start करते हैं. 92 you saw Harshad Mehta scam, you saw Manmohan Singh reform, you saw the Asian crisis, you saw Pokhran, you saw Vajpayee, you saw Devi Gowda, you saw Chandrasekhar, you saw VP Singh, you saw Mandal scam, you saw tech bubble, you saw tech crash, 9/11, BJP again coming to power, you saw coal scam, BJP losing, Congress coming to power, you saw 2008 Lehman crisis, you saw 2013 rupee moving from 50-55 to 70, the tapering crisis जिसको बोलते हैं. फिर 2014 मोदी जी आए, उसके बाद आपने GST देखा, डीमोन देखा, और सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा आपने देखी कोविड. सब चीज़ देख लिया, और आज के दिन 3,000 वाला सेंसेक्स 60,000 है. 12 से 13-14% का कैकर है कि नहीं है? हर साल आपके सामने एक इवेंट हुआ जिसने आपको डाउट किया कि मार्केट में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए. एंड फाइनली ओवर अ कैगर ऑफ अ पीरियड यू मेड मनी. देयर विल ऑलवेज एवरी ईयर बी ग्लोबल और अ लोकल इवेंट which will question you on your investment. But if you think your bigger picture is right,
whether India is moving on the right track from $3 trillion to $8 trillion economy over the next decade, trust me friends, you will all generate money and wealth. And God has been kind to us. 10 साल पहले आप देखो आपकी wealth क्या थी, आज क्या है? Better ही है ना भाई? I think not single one in this room can point out कि I am worse off than last 10 years. हाँ या ना? अरे लेके नहीं जाने वाला हूँ. हाँ या ना? Yes. So I think it will be better as we move ahead, but we have to be very patient and disciplined in our approach to investing. The only two things which are under our control. And I always believe कि 3 चीज़ हमारे पास कंट्रोल में है, उसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है. पहला, हमारा इमोशन, हमारा टेम्परामेंट. अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे तो आप अपने सबसे बेस्ट वेल्थ क्रिएट कर पाओगे. हमारा सबसे बड़ा एनिमी हम खुद हैं, क्योंकि हम अपने इमोशन टेम्परामेंट को कंट्रोल नहीं करते हैं और हर समय कुछ ना कुछ करने की, कोई भी न्यूज़ आता है उसको रिएक्ट करने की कोशिश करनी है. पहला वो आप कंट्रोल करो. नो योर सेल्फ इज मोर इंपॉर्टेंट देन KYC. KYS is more important than KYC. How did you behave 3 years back? How did you behave in 2013? How did you behave in Lehman crisis? Is the most important thing. Second, know which company you are investing or which fund you are investing in. Do your proper research, because if the company is not managed by good people, good opportunity, probably you will not be able to ride on that, or same with the same portfolio manager or the fund. And the third point is that think about कि ये 100 रुपया का प्रॉफिट इस कंपनी का या इस फंड का या जो भी है, नेक्स्ट 5-7 साल में 300 होगा, 400 होगा, 500 होगा. नीचे नहीं आना चाहिए, ग्रोथ आनी चाहिए. ये 3 चीज़ आपके कंट्रोल में है, बाकी सब मोह माया है. सब नॉइज़ को, पुतिन साहब क्या करेंगे, फेडरल रिजर्व क्या करेगा, आपके कंट्रोल में नहीं है. एंड आई थिंक दैट्स द रियल अपॉर्चुनिटी. I think if you can choose the right stocks like me, my job is to do that. If you can guys choose right advisor, fund manager, I think your job is 95% done. And then you control your own emotion and temperament कि short term में 1 साल नेगेटिव भी होगा, 2 साल नेगेटिव भी होगा, रिटर्न होगा. आपको फिर अच्छा लगेगा यार FD में लगा देता यार, 7% तो FD में ही आ जाता था, कहाँ अपने इक्विटी में फंस गए. नॉर्मल होगा, 20 साल होगा, क्योंकि FD का रिटर्न 7.5% आने लग गया है और इक्विटी फंड्स का रिटर्न 1 साल का नेगेटिव आपको दिख रहा है. ये कॉमन आपके सजेशन आपके दिमाग में घूमेंगे. उस समय आपको याद सोचना है कि मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है, मेरा बिगर पिक्चर क्या है, क्या मैं इसको सहन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. 2 साल नेगेटिव होगा, बट ओवर अ 5-year पीरियड कैन इट मेक अप फॉर द 2-year नेगेटिव? माई आंसर इज येस. एंड आई हैव सीन मल्टीपल साइकिल्स नाउ कि 2 साल का SIP रिटर्न, 3 साल का SIP रिटर्न नेगेटिव देख रहा था और 2 साल ने उसको 20% का SIP रिटर्न दे दिया. कैगर, हाँ. और फ्रेंड्स, आई एम नॉट बोस्टिंग, बट टुडे आई एम मैनेजिंग 35-37,000 crores एंड मोस्ट ऑफ द फंड्स, 3 funds 4 funds विच आई एम, अभी एक तो एकदम बच्चा ही है, नया 1 महीना पहले लॉन्च हुआ, हैव गिवन अ कैगर ऑफ 20% CAGR ओवर द लास्ट डेकेड. Or last decade, in my view, has been the toughest decade to manage. Toughest decade. और मेरा ये firm belief है, अगर आप last decade में 20% CAGR कर सकते हो, थोड़ा भी tailwind आया, तो you can just move to the next level if you don't lose your basic approach of investing. वो हाँ, यहाँ तो tailwind ही tailwind है. But एक चीज़ जो मैं आपको, I don't know how much time we have. 8-10 चलो है, थोड़ा टाइम है. तो will you like to see what I do, what have been my learnings over the last 20 years? It will help you. तो ये सब तो themes थे जो मैंने आपसे बात कर दी. हाँ, so ये disclaimer है, this presentation education, no buy sell recommendation. So मेरे को हमेशा एक चीज़ होता है कि बुलेट प्रूफ इन्वेस्टिंग क्या होती है. बुलेट प्रूफ मतलब आपको गोली लगेगी, आप थोड़ा सा हो सकता है आपको जोखिम भी आए, बट आप मरोगे नहीं, राइट. एंड अगर वो आपका अप्रोच है इन्वेस्टिंग में, तो ट्रस्ट मी, आपके इंटरमीडिएट लॉसेज हो सकते हैं, बट आपका कैपिटल कभी वाइप ऑफ नहीं होगा.
आज मैं रोज रात को सोता हूँ, और ये नहीं कि क्योंकि आप लोग हो, मेरे दिमाग में एक ही चीज रहती है, मेरे पास 18 लाख लोगों का पैसा है, 18 लाख अक्रॉस माई 3-4 फंड्स, छोटे से छोटा बच्चा एंड बड़े से बड़े बुजुर्ग, चाहे वो 2000 रुपया हो या 2 करोड़ रुपया हो, उनका पैसा आता है. आई शुड नॉट डू एनीथिंग विच वाइप्स ऑफ द कैपिटल ऑफ दैट पर्सन एट अ पोर्टफोलियो लेवल. एंड देन व्हेन आई ऑलवेज इन्वर्ट, और लाइफ में ये बहुत सिंपल चीज है, आप लोग कभी भी आजमाना, कभी भी कोई चीज हो उसको इन्वर्ट करो कि अगर मुझे कैपिटल लॉस नहीं कराना है, इन्वर्ट करो कि मुझे क्या नहीं करना है. एंड इफ एनीबडी इन द बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग नोज what not to do, trust me, they will be the winners in the long term. What to do is very easy. What not to do in life, if you have those non-negotiables, you will never fail ever in your business and investment. हम अगर 10 चीज लिख लें कि हमें कच्चा काम ही नहीं करना है, सपोज बिजनेस में हमें ट्रस्ट के ऊपर काम करना है, हमें शॉर्टकट लेना ही नहीं है, हमें बैलेंस शीट कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है, हमें डेट इतना बड़ा लेना ही नहीं है. आप 10 चीज़ लिख दो, और सेम इन्वेस्टमेंट में मैं 10 चीज़ लिख देता हूँ. आप देखो लाइफ में ऊपर नीचे होगा, बट स्ट्रक्चरली यू विल बी ऑलवेज बेटर ऑफ. एंड फॉर यंग जनरेशन आई वुड एडवाइज, प्लीज रीड दिस बुक ऑफ विच इज़ माई बाइबल, एंड यू कैन नोट इट डाउन. ऑल आई वॉन्ट टू नो वेयर आई एम गोइंग टू डाई, सो आई विल नेवर गो देयर. All I want to know where I am going to die, so I will never go there. It's a book on Charlie Munger and Warren. It's a Bible for me. आज भी मुझे कोई तकलीफ होती है, मैं उस बुक्स के 10 पन्ने पढ़ लेता हूँ, क्लैरिटी लाइफ में आ जाती है. It's a book by Peter Beverick. All I want to know where I am going to die, so I will never go there. The first thing which I believe इंडिया में सबसे ज़्यादा important है in last 20 years which I have practiced investing more than the business is the management. अगर आप मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन सही कर लोगे, ट्रस्ट मी 80% ऑफ योर जॉब इन इंडिया इज डन. ओके, एंड टू मी दिस इज अ साइंस एंड एन आर्ट. एंड लेट मी गिव यू अ सीक्रेट सॉर्स ऑफ हाउ डू आई डू दैट. सो बाय God's grace, I have developed a network of CAs over a long period of time across country. And any company I evaluate, the first call goes to that CA कि भाई प्रमोटर का क्या हालचाल है, कच्चा पक्का कितना करता है, पर्सनल बैलेंस शीट ठीक है क्या, कुछ गड़बड़ नहीं है ना, लाइफस्टाइल कैसा जीता है. बिकॉज टू मी द पर्सनल बैलेंस शीट इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम अ कंपनी. अगर वो पर्सनली लेवरेज्ड है, ट्रस्ट मी, वो कंपनी में आज नहीं थोड़े दिन बाद दिखेगा. सो डू अ प्रॉपर चैनल चेक्स, एम्प्लॉय से बात करो, इकोसिस्टम में बात करो, सप्लायर से बात करो, बैंकर से बात करो, आपको एक पूरा फील आ जाएगा अबाउट द मैनेजमेंट. अगर वो कचरा आदमी है तो 5 में से 4 लोग उसको कहीं ना कहीं आपको बता देंगे, और अगर वो भगवान का आदमी है तो 5 में से 5 आपको अच्छा फीडबैक. This is my style. At the ground level, कि management evaluation is more important. And see how managements have done wonders. पहला वाला कौन है? उसके बाद Tim Cox. And you saw the Apple, the biggest wealth creator. Second वाला कौन सा कंपनी है? सत्यम? No. कौन रामन आजू लग रहा है भाई यहाँ पर? ये वाला. This is levers, right? This is called the factory of CEOs, right? And see how all CEOs have done well, and the latest has been Sanjeev. नीचे वाला कौन सा है? हाँ, टाटा का है, बोलो कौन? Titan, right? This is what the CEOs have done. नीचे वाला कौन सा है? Bajaj. And see how both the sons have created wealth in their own strides. So management can and leaderships can do wonders if you can identify them. And how do I evaluate, things? First is trust. I think trust
विश्वास सबसे बड़ी चीज है। एंड अगर इस रूम में मैं अगर आज आपसे सबसे पूछता हूं, वन ग्रुप विच यू ट्रस्ट ब्लाइंडली, एक दिन में नहीं आया फ्रेंड्स, एक दिन में नहीं आया। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दारो भाई टाटा, राइट? टिस्को बिकने वाला था, एक दिन की सैलरी देने को उनको थी नहीं पैसा 1923 में। टिस्को वुड नॉट हैव बीन टिस्को व्हाट यू आर सीइंग टुडे। ही गॉट अ कॉल कि वी वांट टू पे 1 crore rupee सैलरी, वी डोंट हैव दैट। यू नो व्हाट ही डिड? मेहर भाई जो उनकी वाइफ थी, उनका जो टाइटन का जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डायमंड का नेकलेस वो थ्रोन था, उसने उसको जाके मॉर्गेज किया, 1 crore रुपया इंपीरियल बैंक से लोन लिया और इमीडिएटली वायर्ड इट टू जमशेदपुर फॉर द पेमेंट ऑफ द सैलरी। एंड दैट्स व्हाट टाटा इज। The reason trust is there because over a period of time they have developed that. And I look at very, very carefully how managements have behaved over longer periods. Second is culture. In this commoditized world, friends, the only thing which can separate you from the rest of the crowd is the culture in your organization which you develop. And this is only coming from top. As why people trust SDFC Bank, why people trust Kotak, why XYZ? बिकॉज वो जानते हैं यहाँ फालतू काम नहीं होगा, 2 नंबरिया काम नहीं होगा। इट हैज़ टू बी फ्लोइंग राइट फ्रॉम द टॉप। कल्चर इज सेकेंड, इंटीग्रिटी एंड पैशन। प्रमोटर को एक पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो सुप्रीम इंडस्ट्रीज, थपाड़िया जी जानते हैं कितने साल के हैं वो? 83। आज भी मैं आप सबको ये चैलेंज दे सकता हूं इस रूम में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वो 15 घंटा काम करता है वो आदमी। ऑफिस एमपी तापड़िया, ऑफिस में स्टाफ नहीं आता है, एमपी तापड़िया इज इन दी ऑफिस। एंड कई कई मीटिंग में मेरे नंबर अगर गलत हो जाते हैं तो रोक के बोलता है बेटा ये नंबर नहीं है, ये नंबर है। दी एजिलिटी, दैट्स पैशन, दैट्स इंटीग्रिटी विच यू कांट मैच। एंड आई हैव जस्ट गिवन एन एग्जांपल, लुक आउट फॉर दैट। स्केलेबिलिटी, मोस्ट पीपल इन इंडिया डोंट थिंक बिग एंड स्केल करने की सोचते ही नहीं है। एक लेवल में जाके इतना संतुष्ट हो जाते हैं कि वो स्केलेबिलिटी के बाद आगे का ध्यान ही नहीं आता है। रिलायंस हैज ब्रेकन दैट मिथ एंड शोड दैट हाउ एग्जीक्यूशन एंड स्केलेबिलिटी माइंडसेट कैन क्रिएट वंडर्स ग्लोबली। फेडेक्स, स्केलेबिलिटी कि मुझे यूएस से लेके अब पूरे वर्ल्ड को मैं सप्लाई कर रहा हूँ। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई थिंक इंडियन companies will undergo a massive change in the next 3 to 5 years is succession. The first and the second generation is on the verge of retiring now. They are between their 65 to 75 years of age, and the only thing which I do nowadays when I meet companies is look out for the next generation who is going to manage it. भाई हम लोग ने जमीन से बो के काम करके मेहनत की है, जो नेक्स्ट जनरेशन वो सीधा BMW मर्सिडीज में पैदा हुआ है। नो ऑफेंस, बट डू दे हैव द हंगर एंड पैशन टू रन द बिजनेस? डू दे अंडरस्टैंड दैट द वैल्यू ऑफ मनी? आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट 3 to 5 years that can create value, that can destruct value. Creation of value in front of you. How Bajaj beforehand only clearly separated succession for both the companies. Both the companies in their own stride are wealth creators for investors. And 10x in 10 years में जो बताया आपको, उसमें सबसे बड़ा नाम है बजाज फाइनेंस, 100x in 10 years. 100x in 10 years. That's succession. Delegation. सबसे बड़ा इंडिया का प्रमोटर का प्रॉब्लम है कंट्रोल हाथ में रखना, नहीं डेलीगेट करना। आज भी रात में चेक साइन करेंगे, बाबूजी जब तक नहीं बोलेंगे तब तक काम नहीं हो। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच इज प्रिवेंटिंग इंडियन कंपनीज टू गो ग्लोबल। एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल इन दिस रूम इज अ कंपनी कॉल्ड मदरसन सुमी। वन गाय, मदरसन मतलब मदर और सन ने कंपनी स्टार्ट की थी। एक बंदे ने समझ गया कि मैं अकेला हूं, कैसे कर सकता हूं। कंपनी थी 300 करोड़ की, आज 1.5 लाख करोड़। अब बेटा आया तो बोला हम 1 + 1 2 नहीं है, हम 1 + 1 11 है। उसी तरह काम करना है।
और शुरू दिन से डेलीगेशन पर ध्यान दिया। 300 करोड़ कंपनी में बोला मुझे एमडी नहीं रहना है, मैं चेयरमैन बनता हूँ, बिकॉज अगर मैं एमडी रहा तो रोज बिल पास करना होगा, अप्रूवल करना होगा, ये मुझे नहीं करना है। ग्रोथ की कौन सोचेगा? He became the chairman in 1998. After that, he has never looked back and delegated to the right professionals, created a structure, IT systems, and आज उनके नोएडा में there are 1500 IT professionals accredited better than Infosys and TCS, friends. Mindset issue, delegation, focus. थोड़ा सा कंपनी बड़ा नहीं होता है, एडवाइजर्स आ जाते हैं, जी सर आप तो फाइनेंस में अच्छा कर रहे हो, रियल एस्टेट क्यों नहीं कर लेते हो, प्रमोटर भी बन जाओ। अच्छा आप प्लास्टिक में अच्छा कर रहे हो तो आप टेलीकॉम में घुस जाओ, आप इसमें अच्छा कर सकते हो तो उसमें भी अच्छा कर सकते हो। आपके फोकस को पूरा, आई डोंट लाइक दैट। मे बी सर्टन कंपनीज आर एक्सेप्शन, आई टोल्ड यू अबाउट रिलायंस एंड अदर्स, but many companies 95% fail when they diversify themselves, and the classic example is Mr. Malia, so well doing his liquor business, cash cow, thought that airlines is my baby, एक airline ने उनको पूरा, and there are ample examples. And the classic Indian example, friends, who has created wealth by focusing on only one and one thing is Shree Cement. Agreed? No recommendation to buy and sell, huh? Right? Case study of used technology which I used very regularly to aspect. I'll give you a small example. एक chemical company है, one of the biggest wealth creators हमारे portfolio में। 2 साल पहले मुझे पता चला कि उस कंपनी का मिडिल लेवल और 1-2 लोग, 4-5 लोग छोड़ के जाने लगे। मैंने प्रमोटर से बात की कि सर ऐसा ऐसा एट्रिशन बहुत जोर हो रहा है, क्या बात हो गई? बोला नहीं पंकज जी, ऐसा कौन बोल दिया आपको, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं और हो भी नहीं रहा है। तो मैंने बोला अच्छा, आई जस्ट वेंट टू लिंक्डइन। लिंक्डइन इज अ ब्यूटिफुल प्लेस। आई जस्ट टाइप्ड एक्स दैट कंपनी नेम, तो जितने कंपनियों ने लोगों ने उसको छोड़ा था उन सबके नाम आ गए, क्योंकि सब लिखते हैं अपने बायोडाटा में एक्स दिस एंड दैट्स अ बिग लार्ज कंपनी। तो वो एक्स वाले से मैंने 4-5 जन से कनेक्ट किया, 10 लोगों का नाम इमीडिएटली आ गया जो 1 साल में छोड़े। 4-5 लोग बात करने को रेडी हुए, बात किया, प्रॉब्लम समझ में आई, 10 दिन बाद फ़ोन किया वापस, उनसे बात की, मीटिंग की। हम बोला अच्छा आपने तो बोला ये 10 लोगों के नाम हैं और ये रीज़न है। ही वॉज अल्टरली शॉक्ड। ही सेड डिड यू गेट द HR database from my company or what? This was his version. I said no, LinkedIn is a beautiful place to get all data if you lie. Now see, that use of small technology and ground survey can help you how identify management's integrity and whether they are lying or not lying. Are you guys with me? So management evaluation is very, very important. And I also believe history को देखो, because tigers don't change their stripes. जो चोर है ना, वो चोर की नियत कभी चेंज नहीं होगी। अगर वो मैनेजमेंट का चोरी का नियत है, वो थोड़े टाइम के लिए चेंज होगा, बट लंबे टाइम में वो वापस चोरी के नियत पर आ जाएगा। उसके पास्ट को देखो। डाउनफॉल कहाँ कहाँ होता है? डेट, कॉम्प्लेसेंसी, एरोगेंस कि मैं ही मैं हूँ, सेकेंड जनरेशन सक्सेशन, आई सेड डिवर्सिफिकेशन, जो डाइवर्सिफिकेशन की जगह ब्यूरोक्रेसी आ जाती है कई ऑर्गेनाइजेशन में, और एनवी कि वो मेरे से कहाँ से बड़ा चल गया, मेरे को उसको बीट करना है। जिस दिन ये भावना अगर कोई बिजनेस में आ जाती है, उसका डाउनफॉल का आपको दिख जाता है। एंड दिस आई सी इन मीटिंग्स। मेनी कंपनीज, अरे यार वो तो मेरे सामने वाला ट्रेडर था यार, मेरा सप्लायर था, आज मेरे से बड़ा हो गया, कैसे हो सकता है ये वो, एंड ही ट्राइज टू बीट दैट पर्सन, ही फेल्स। बिजनेस फिर आप देख लो कि भाई अपॉर्चुनिटी सेट क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, एंड ग्रोथ शुड नॉट बी एट एनी कॉस्ट। अगर आपको ग्रोथ करनी है कंपनी के अंदर, अपने बैलेंस शीट और कैश फ्लो को प्रोटेक्ट करके करो, कैश फ्लो और बैलेंस शीट को कॉम्प्रोमाइज मत करो। ग्रोथ नॉट एट एनी कॉस्ट, लुक एट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वेरी वेरी क्लोजली। मैं खाली 3 चीज़ देखता हूँ, ROC, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, वेदर वो कंपनी में इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं है। और अगर वो 3 चीज़ अच्छी है, ग्रोथ अपने आप आएगी, और अगर मैनेजमेंट अच्छा है, काम अपने आप होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्सेस लेवरेज, मैंने बताया। ये कंपनी का आपने नाम सुना होगा, सिंटेक्स इंडस्ट्री।
I don't know how many of you know, this was the only company in India where Dhirubhai Ambani was outside Reliance, a board of director. इसका नाम होता था भारत विजय मिल्स. टेक्सटाइल वाले जानेंगे और प्लास्टिक वाले जानेंगे, राइट? जिस बोर्ड में धीरू भाई थे, जो लीडर था इंडिया की टंकी में, टेक्सटाइल में, just because of excessive debt and the debt on the balance sheet, that company crashed. So be aware of debt. And investing mantra is, top line is vanity, bottom line is sanity, and cash in bank is reality. वो धंधे का कोई मतलब नहीं जो खाली टॉप लाइन के लिए काम करे और प्रॉफिट नहीं आए. वो धंधे का कोई मतलब नहीं जो खाली अकाउंटिंग प्रॉफिट दिखे और कैश फ्लो नहीं आए. धंधा वही अच्छा है जिसमें कैश इन बैंक आए. Are you guys with me? I don't know whether I am able to explain you, but I am just talking just over a period. So, and every company will go through its ups and downs. No company is in a growth phase. So I always say that best of the companies will die. Every company has an expiry date. आपको उसको ग्रोथ फेज में उसको पकड़ना है और एक्सपायरी डेट के पहले निकालना है. ये डिफिकल्ट है बस, लेकिन हर कंपनी वर्ल्ड में मरेगी. आप ये लिख के रखो. जिस तरह ह्यूमंस आर नॉट इमॉर्टल, द लाइफ साइकिल ऑफ अ कंपनी इज ऑल्सो श्रिंकिंग. The only job of a promoter and a business owner of that company is to create moats and competitive edge which can elongate the life of that company. Always remember this. I have learned the hard way that अगर सामने BlackBerry मर सकती है, Nokia खत्म हो सकता है, तो nothing is permanent in this world. Process एंड अल्फा इज सिक्लिकल. प्रोसेस होना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट होना चाहिए, आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए. और ये मेरा स्टाइल है कि आपके पोर्टफोलियो में 30-40 गोरिल्ला रखो. गोरिल्ला मतलब जो प्रोसेस से आपने सिलेक्ट किया. आपको नहीं पता है कौन किंग कॉन्ग बनेगा, लेकिन उनमें से 3-4 किंग कॉन्ग बन जाएंगे. हाइंडसाइट में आपको लगेगा अरे मैं तो सुपर ब्रिलियंट था. ट्रस्ट मी, जब आपने लिया था आपको भी नहीं पता था बजाज फाइनेंस 100 गुना होगा 10 साल में. सही है? और पता भी होगा तो बीच के गाड़ी में ट्रेन से उतर गए आप. हाँ, अब हाइंडसाइट में आप बोलते रहो कि भैया मेरे को पता था, लेकिन वो शान पत्ती है, राइट? हाँ, उसका कोई मतलब नहीं है. लेकिन अगर आप ये प्रोसेस को फॉलो करो कि 1-2 कंपनी पर ना बैठ करके बंच ऑफ गोरिल्लास पर बैठ करो, वेरी वेल नोइंग सम विल नॉट डू वेल, सम विल नॉट परफॉर्म वेल, but if 4-5 of them turn into gorillas to King Kong, your job is done. Price is what you pay is also important. Don't forget that, because Levers ने 10 साल तक 0 रिटर्न दिया था. विप्रो का लास्ट ईयर जाके वो 2000 का जो बबल फॉर्म हुआ था, जहाँ असीम प्रेमजी became the second richest person on the earth, that price got crossed after 22-23 years last year. No, Wipro. So the point is that what price you pay to acquire a company, a good company, is also important. Don't look at only कि ये कंपनी बहुत अच्छी है. आज सेब बहुत अच्छा मिलता है आपको, वही वॉशिंगटन एप्पल आपको 200 रुपया की जगह 500 रुपया दोगे, आप लोगे क्या उस आदमी से? नहीं लोगे. बोलोगे तो 200 रुपया का वर्थ है यार, आप 500 रुपया में क्यों बेच रहे हो मेरे को? सेम स्टॉक है. अगर कोई अच्छी से अच्छी कंपनी महंगी मिले तो evaluate, because price is very, very important of what you pay. And this I have learned the hard way. Yes, is important, but growth is the horse, valuation is the cart. आप देखो valuation को, लेकिन मैंने बहुत गलतियां करके सीखी हैं कि खाली valuation देख के मत बेचना. अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट 3-5 साल ये कंपनी और ग्रो कर सकती है, वैल्यूएशन अभी थोड़ा महंगा भी लग रहा है, मत करना कुछ. क्लासिक केस, हर स्टॉक हर भाव पर महंगा लगा, बट 12 साल की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर स्टोरी है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई सेड टू यू, EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ. आज गूगल सब चीज बता देता है, गूगल बाबा, लेकिन इमोशन टेम्परामेंट आपके पास ही रहता है, वो कोई नहीं बता सकता है. तो EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ, एंड KYS इज मोर इंपॉर्टेंट, विच इज नो योर सेल्फ.
बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स, राइट डाउन योर वीकनेसेस एंड बोलो कि मैं इन्वेस्टमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम करता हूँ. अगर वो आप लिखोगे ना, आपको पता चल जाएगा आप डेट इन्वेस्टर हो कि इक्विटी इन्वेस्टर हो. अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर नहीं हो, प्लीज अलग रहो, बिकॉज आप मंदी में बेचोगे और तेजी में घुसोगे. बिकॉज आप जब इस तरह के गैदरिंग में आओगे तो यार बोलोगे यार मैंने किया क्या लाइफ में यार, तो जाके इक्विटी खरीद लोगे. और एक 3 महीने का मंदी आया, बोलेगा यार ये अपने बस का, बेचो, निकालो इसको, बेकार है मार्केट, ये बेकार है, इसमें पैसा बनता ही नहीं है. इक्विटी अपने है ही नहीं यार, अभी तो अपने नहीं, वो फैक्ट है, राइट. एंड एट नो कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज इंटीग्रिटी इन लाइफ. आई थिंक दिस विल गो प्राइसलेस इन द टाइम्स टू कम. अगर आपका इंटीग्रिटी, ट्रस्टवर्दीनेस ज़्यादा है, you will always be a winner. And I always remember Rome was not built in one day, and I tell to all my teammates every day, Hiroshima was destroyed in few hours. Trust is hard to build, but it takes very short time to lose it completely. And if your trust is lost, integrity is lost, your character is completely lost. Please take it as a non-negotiable in business and in investing. Do not focus on targets, focus on incremental change every day. And what I was saying to few of the people out here, that आप अपने business में देखो आप incremental change every week, every month कहाँ कर पा रहे हो, और वो आपको target पर अपने आप ले जाएगा rather than big bang target setting and not doing anything. Remain focused, stay clear of noises. ये मेरा रोज का काम है. 100 noise आते हैं, 100 news आती हैं, but just remain focused. Make reading a habit. I see among youngsters today, they don't read a lot. Please read, right? And humility. Digesting success is very, very important, friends. Don't lose your overall character. अगर humility नहीं है आपको life में, trust me, you will be crushed one day. रावण का नहीं चला अहंकार, तो अपने क्या चीज़ है. And जैसे जैसे success मिलता है, लोग become arrogant, people become they. A view of equanimity is very important. आज जो अच्छा हो रहा है वो आपके कारण नहीं हो रहा, आज जो खराब होगा वो भी आपके कारण नहीं होगा. अगर ये स्टेबिलिटी आपके दिमाग में है, trust me, over a period of time, no up cycle, down cycle will disturb you, and you will be successful over a period of time. Never become arrogant and digesting success is very, very important, especially to youngsters. You will do well, but keep yourself humble every time. Don't let success go to your head. And this is what I have been practicing. I think अगर एक चीज़ लाइफ में आप लोग को इस पूरे सेशन से लेके जाना हो, और अगर आप नहीं कर रहे हो, प्लीज़ मेडिटेशन या विपासना आप लोग सब करो. अगर आप वो करोगे आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट भी डेली, टेक इट फ्रॉम मी, द स्टेबिलिटी विच यू विल गेट इन योर माइंड, इट विल बी अनबीटेबल. एंड गोइंका जी को आप जानते हैं, इज द फादर ऑफ विपासना, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो हिज हिस्ट्री. बर्मा में थे, सबसे शॉर्ट टेम्पर्ड थे, छोटे छोटे बात पर एकदम गुस्सा आता था, फैमिली पर गुस्सा निकालते थे. एंड देन ही वेंट टू अ टीचर इन बॉम्बे, ही टॉट हिज बेसिक थिंग्स. बर्मा में बताया, फिर वो बॉम्बे आए, उन्हें छोटे छोटी क्लासेस लेनी स्टार्ट की, एंड दैट चेंज हिज लाइफ एंड द लाइफ फॉर विपासना वर्ल्ड ऑल थ्रू आउट. एंड फ्रेंड्स, जिस दिन आपको इक्वानिमिटी की व्यू आ जाएगी ना, आप ट्रस्ट मी, मार्केट के नॉइजेज, ऊपर नीचे, घर के टेंशन, छोटी छोटी बात, आप उससे ऊपर उठ जाओगे. And I think this is extremely, extremely important. I have been practicing for 16 years now. Every day the day doesn't get fulfilled if I don't practice chanting and meditation. And this is something which has helped me stay grounded, stay focused. And ये मैं just आप लोग से दिल से share कर रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, but please do that. Please do that. Last but not the least, look at this letter which came to me 1.5 months back. I just opened my email on 1st of August in my office.
Dear Pankaj uncle, I am so and so, I am 10 years old guy, I am studying in Abu Dhabi in grade. कहाँ से उसको email मिला मेरे को भी नहीं पता. My father has put 1 lakh rupee investment in your Kotak small cap fund. This 1 lakh is my sister's and my whole life saving that we have received from our parents. जो भी शादी, पूजा पाठ सब में अपने को देते हैं बच्चों को. And relatives, I hope you take good care of it. हाँ? मेरे ऊपर responsibility डाल दिया. Of it so that it can help me pay my college fee. He's thinking about his college, a 10-year-old boy. But I am sure you will since you are India's one of the best fund managers. Innocence भी है और एक responsibility का है. This 1 lakh is under my father's folio number भी दे दिया. Wish you all the best, yours sincerely. Friends, when I read this mail, it created goosebumps. क्योंकि कब जब आप 35,000 करोड़ मैनेज कर रहे हो ना, तो आप 1 लाख रुपया सोचते भी नहीं हो, राइट? वो चीज़ ने बताया ये ईमेल में कि बॉस ये 1 लाख रुपया वाला इन्वेस्टर भी इंपॉर्टेंट एंड ही हैज अ गोल ऑफ पेइंग योर कॉलेज फी थ्रू योर फंड परफॉर्मेंस. इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तक एवरी नाइट में आई यूज टू सी दिस लेटर. It's the fiduciary responsibility. And this is, I go through every day. That's why I say I'm not managing money for one person. I'm managing money for 18 lakh people out there. It writes from किसी को matter भी नहीं करता होगा, किसी के लिए वो बहुत बड़ा amount है. So this I thought I'll share with you. I'm so glad that you all are there. And thank you so much. I would have loved to take questions, but somehow my wife's birthday is there and I need to reach her to wish her for a dinner. So if you allow me, I can take your leave. Yeah. Just one, I'll take just one Yes, minute. please. Yes, And I would like to thank my heartfelt gratitude to our esteemed speaker, Mr. Pankaj Tibrewal. And I would like to call upon our strength, professionally and personally, my father-in-law, Vikas Goyal, to present a small token. अरे ये सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है बॉस. Thank you so much. Thank you. And I would like to thank all of you to be present here. Please join us for dinner and cocktail. Thank you. Thank you.